Greetings from iTech India. Welcome to our National Distance Learning Seminar series on the topic OST Refresher Come Follow-up Meeting. Today we have with us Dr. Amit Singh, who is currently working as Assistant Professor Psychiatry at King George's Medical University, Lucknow. He has worked as consultant harm reduction with the TI division at NACO, and he has more than 40 publications to his name and has experience as a peer reviewer for several national and international journals. So I welcome all the medical officers as well. Thank you so much for joining us today. Over to you, Dr. Amit. Thank you, Anushree. Thank you for such a nice introduction. So let me briefly introduce myself. I am Amit Singh. Anushree have already introduced. And now for today's agenda, first we will have a brief presentation on buprenorphine-based OST. It will be sort of a quick recap of the important things related to buprenorphine maintenance treatment. And then we will have a sort of a discussion where we will address all the questions, queries, or problems people are facing while managing patients with opioid dependence. Before I move forward, I would like you people to briefly introduce yourself. So in this small group, we will be able to know who other people are, where they are working. Thank you so much, Dr. Amit. So can we please begin with Dr. Reva Sood? Could you please unmute yourself and briefly introduce like where you're from and for how long you've been working at the OST? Dr. Piyush Goyal, could you please begin? Okay, myself, Dr. Piyush Goyal, working as a medical officer, OST Center in Premnagar, located in Dehradun, Uttarakhand. And since last 2 years, I am working as a medical officer in OST. Presently, we have presently we have 70 patients with us in OST Center Premnagar, and most of them are very regular and taking their daily dose as per prescribed by the NACO guideline. So just joining with you and try to learn a lot of from Dr. Amit Singh. Thank you, madam. Welcome, Dr. Piyush. Yes. Dr. Abhishek Chaudhary, could you please go next? Good evening, sir and ma'am. Myself, Dr. Abhishek Chaudhary. I am a medical officer in District Hospital Rudrapur OST Center, which is presented in Uttarakhand, and we have 106 patient in a regular basis. Okay. Welcome, Dr. Abhishek. Dr. Sucheta Singh, could you please go next? Dr. Sucheta, yes, please. Myself, Dr. Sucheta Singh, working in OST Center Kashipur from 3 months. Welcome, Dr. Sucheta. Dr. Sanjay Gupta. Myself, Dr. Sanjay Gupta from OST Haldwani, Banmurpura. Welcome, Doctor. Okay. Dr. Ajay Kumar. Hello, good afternoon, ma'am. I am Dr. Ajay Kumar, District AIDS Program Officer, Unna, Himachal Pradesh. And there is only one OST in the Himachal Pradesh. And I am looking it for last 3 years. And there are more than 120 patients. Okay, great. Thank you so much. Dr. Sharmila Thakur. I think she hasn't connected to audio. Dr. Reva Sood, could you please unmute yourself? Yeah, Yes. good afternoon. I'm Dr. Reva. I'm also working in RH Una as Dr. Ajay.
I've started working since 1.5 months, and we have one OST center that is main in RH Una, and we have 2 satellite centers also. Welcome, Dr. Eva. Thank you. So let's begin with my presentation. Yes, please. So we will briefly discuss about the buprenorphine-based OST. And before going forward, I would like to know that what would be your preferred language? Like if I should be speaking only in English, or a mixed language will be okay. Hindi, English sort of thing. Sir, mix will be okay. We are from. Okay. I will be giving this presentation under following heads. Starting with opioid substitution therapy. What opioid substitution therapy is? So what we do in opioid substitution therapy is that we substitute the drugs of abuse, such as morphine, heroin, or any other drug which is taken through some harmful route or in illicit manner. So we substitute these drugs with some agonist medication, such as buprenorphine or methadone. However, in our program, in National AIDS Control Program, we provide buprenorphine only. So the problem with drugs of abuse is that they are illicit. Like if caught by police, they can be incriminated. They are medically unsafe. We don't know that whatever drug is there in a regular supply, what is its potency? Many a times they are highly adulterated, so their composition, potency, it varies a lot. Also, morphine or heroin, they are short acting. So often people need to take these medications or drugs multiple times a day because of their short duration of action. So the person or the patient is required to take it multiple times in a day. And so there is lots of wastage of time in taking this substance or using this substance. They are also more addictive because they give a sudden high. And often they are taken through injecting route, which leads to it may lead to overdose related deaths. It may also predispose one for various bloodborne infections, including HIV, hepatitis C, hepatitis B. So when we talk about buprenorphine, it is legal. If somebody is caught with buprenorphine and they have a valid prescription, so the police will not be able to incriminate them. Also, they are safe. So since it is taken through sublingual route, it can easily be taken, and we know that what is its purity, what is its potency. So if we are giving, let's say, 2 mg of buprenorphine, it actually means that they are receiving 2 mg because of their known purity and potency. Buprenorphine is long acting. So if taken once, it can take care of the withdrawals and craving for whole 24 hours. So person is required to take buprenorphine just once in a day and not multiple times, which is there with other drugs of abuse. We often combine opioid substitution therapy with psychosocial intervention to get the maximum benefit out of this treatment strategy. So there are some important pharmacological properties of buprenorphine, which makes it such a good medicine to be used in our program. So now we'll discuss briefly about these important pharmacological properties.
So there are opioid antagonists, there are opioid agonists, and then there is a partial agonist. Let me, I believe. So talking about antagonist, naltrexone is an opioid antagonist. So when naltrexone is given, it binds to the opioid receptor in brain, and it blocks these receptors and would not let them exert any effect. So this is antagonistic action. Here we see a dotted line, and from this figure we can see that even if the dose of naltrexone is increasing, there is no opioid effect. In contrast to this, there is opioid agonist such as morphine or heroin. So here we can see that when we are increasing the dose of morphine or heroin, its effect is also increasing proportionately. Now coming to buprenorphine. Buprenorphine is partial agonist. So at low doses, it has effects similar to opioid agonists such as morphine. So we can see that up to certain dose, the this light red line, it is sort of increasing in proportion to with increase in the dose, there is an increase in effect, but at lower dosages only. But as soon as the dose of buprenorphine is increased even higher, then there occurs a plateau. There is a curve, and this line just plateaus. So a further increase in dose of buprenorphine would not lead to a proportional increase in the effect. Similarly, with high dose of buprenorphine, the adverse effect do not increase proportionally. So the risks related to opioid overdose, which is there with the agonists, is not present with partial agonists such as buprenorphine. तो जो buprenorphine का partial agonistic property है, इसकी वजह से ये है कि इफेक्ट भी कुछ डोज के बाद प्लेट्यू कर जाता है, और साइड इफेक्ट्स के लिए भी कुछ डोज के बाद प्लेट्यू हो जाता है. तो buprenorphine भी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराता है, लेकिन ये कम होता है. और अगर आपने buprenorphine की डोज बहुत ज़्यादा भी दे दी किसी को, तो चूंकि इसके लिए एक प्लेट्यू आ जाता है, तो फर्दर इंक्रीज इन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो होता है वो नहीं होगा. So the risk of overdose related deaths are very less. The chance of death is quite low. दूसरा जो important property है वो है buprenorphine का, कि इसका जो opioid receptors है हमारे ब्रेन में, हमारे बॉडी में, उनके लिए काफी हाई एफिनिटी रहता है, काफी स्ट्रांगली बाइंड करता है. तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई ओपियोइड ले रखा है, लेट्स से हेरोइन, तो buprenorphine चूंकि ओपियोइड रिसेप्टर से बहुत ज़्यादा टाइटली बाइंड करता है, तो अगर उसने हेरोइन ले रखा है और ऊपर से buprenorphine ले लिया, तो buprenorphine क्या करेगा कि हेरोइन को हटा देगा और खुद जाके बाइंड हो जाएगा. इससे वो सिर्फ अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. हेरोइन का जो इफेक्ट तो मिल रहा था वो चला जाएगा. इसके उलट अगर कोई व्यक्ति buprenorphine मेंटेनेंस ट्रीटमेंट पे है या रेगुलर buprenorphine ले रहा है, तो buprenorphine पहले ही से जाकर के ओपियोइड रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा. और अगर उस व्यक्ति ने कभी उसके buprenorphine के ऊपर भी हेरोइन ले लिया, तो buprenorphine खुद अपने उस रिसेप्टर से नहीं हटेगा, और इससे जो हेरोइन है या स्मैक है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा.
तो जैसा हमने पहले कंडीशन में देखा, Is it just me or Dr. Amit, we've lost his voice? बाकी लोग सुन पा रहे हैं उनको? नो मैम। Okay, कुछ technical error होगा. We'll wait for him to join back. कैन एनीबडी, क्या कोई बताएगा कि किस स्लाइड से लोग नहीं सुन पाए? सर क्लिनिकल इम्प्लीकेशन से। ओके ओके, सो यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई हेरोइन लेता है तो हेरोइन का लेट से 100% इफेक्ट आता है, और उसके ऊपर उनने अगर ब्यूप्रेनॉर्फिन लिया तो ब्यूप्रेनॉर्फिन हेरोइन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद जाकर के रिसेप्टर से बाइंड होगा। तो हेरोइन का 100% इफेक्ट था, लेकिन ब्यूप्रेनॉर्फिन का इफेक्ट जो था अराउंड 50% है। तो जो ओवरऑल इफेक्ट है वो सडनली रिड्यूस हो जाएगा 100% से 50%। सो इसकी वजह से एक विड्रॉल की का स्टेट आएगा। तो ये जो इफेक्ट है इसको हम बोलते हैं कि ब्यूप्रेनॉर्फिन की वजह से विड्रॉल्स प्रेसिपिटेट हो गए हैं। इसका उल्टा तब होता है अगर कोई व्यक्ति ब्यूप्रेनॉर्फिन ले रहा है रेगुलरली और उसके ऊपर से उनने कभी हेरोइन ले लिया, तो ब्यूप्रेनॉर्फिन जो है वो हेरोइन को एक्ट नहीं करने देगा और हेरोइन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देगा। तो चूंकि ब्यूप्रेनॉर्फिन खुद भी एक ओपियोइड है, लेकिन उसने हेरोइन के इफेक्ट को ब्लॉक कर दिया है, तो इस चीज को ओपियोइड ब्लॉकिंग इफेक्ट कहते हैं। लेकिन ये जो ओपियोइड ब्लॉकिंग इफेक्ट है ये तभी आता है जबकि हम ब्यूप्रेनॉर्फिन ऑप्टिमम डोज में दें। अगर हमने कम डोज में दे रखा है तो कुछ रिसेप्टर्स जो होंगे, ओपियोइड रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में खाली रहेंगे और उन पर जाकर के हेरोइन बाइंड कर जाएगा। तो ये ज़रूरी है कि हम पेशेंट्स को अच्छे खासे डोज में ब्यूप्रेनॉर्फिन दें और ये ओपियोइड ब्लॉकिंग इफेक्ट जो है वो हम अचीव कर पाएँ। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ब्यूप्रेनॉर्फिन की कि ये स्लोली डिसोसिएट करता है रिसेप्टर से। तो जहाँ पे स्मैक या हेरोइन मल्टीपल टाइम्स इन अ डे लेने की ज़रूरत पड़ती है, उनका जो इफेक्ट रहता है 4 to 6 आवर्स के लिए रहता है, लेकिन इसके बाद फिर विड्रॉल्स आने लगते हैं। ब्यूप्रेनॉर्फिन एक तो टाइटली बाइंड करता है रिसेप्टर से, स्लोली उनको उनसे डिसोसिएट होता है, और साथ में जो ब्यूप्रेनॉर्फिन है वो हमारे सबलिंगुअल म्यूकोसा में जीभ के नीचे इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे रिलीज होता है। तो जो ब्यूप्रेनॉर्फिन का इफेक्ट है वो काफ़ी लंबा रहता है, लगभग 24 to 37 आवर्स। तो इसको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये जो 24 आवर्स का कवरेज है उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि हम ब्यूप्रेनॉर्फिन ठीक ठाक डोज में दें। अगर हम लो डोजेज में दे रहे हैं, लेट्स से 2 मिलीग्राम, तो इफेक्ट शायद 12 आवर्स के करीब ही रहे। अगर हम हाई डोजेज में देते हैं, लेट्स से 16 मिलीग्राम या उसके ऊपर, तो इफेक्ट में लास्ट अप टू 48 आवर्स। तो इससे फ़ायदा ये है कि जो लोग स्मैक लेते हैं, जब वो नशा करते हैं तो नशे के अंदर कुछ काम नहीं कर पाते हैं। फिर जब विड्रॉल होता है तो विड्रॉल का डिस्कम्फर्ट इतना ज़्यादा रहता है कि तब भी काम नहीं कर पाते हैं। तो ओवरऑल फंक्शनिंग उनकी काफ़ी अफेक्टेड होती है। लेकिन अगर आप ब्यूप्रेनॉर्फिन की बात करें तो इससे सडन पीक नहीं आता है, इंटॉक्सिकेशन भी नहीं होता है। तो लोग ब्यूप्रेनॉर्फिन लेने के बाद अपना काम अच्छे से कर पाते हैं, और इसका विड्रॉल भी जो है वो
सडनली नहीं आता है, और 24 आवर्स तक आपने अगर अच्छे से डोज दिया है तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो लोग फंक्शनल रह पाते हैं बुप्रेनॉर्फिन के साथ। फिर एक क्वेश्चन होता है कि हम बुप्रेनॉर्फिन को सबलिंगुअली ही क्यों देते हैं? व्हाई नॉट ओरल, बक्कल और थ्रू आईवी रूट? सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद बुप्रेनॉर्फिन की बायो अवेलेबिलिटी जो है वो अराउंड 51% के करीब होती है। अगर हम ओरली देंगे बुप्रेनॉर्फिन को तो इफेक्ट सिर्फ 10% ही रहेगा, उसका बायो अवेलेबिलिटी 10% ही रहेगा। फिर ये होता है कि इंट्रावीनस रूट फिर तो अच्छा है, उससे 100% बायो अवेलेबिलिटी रहेगी। लेकिन आईवी रूट से भी इशू ये है कि आप नीचे वाले इसमें टेबल में देख सकते हैं कि आईवी रूट से हाफ लाइफ 3.2 आवर्स का ही है। तो अगर कोई आईवी बुप्रेनॉर्फिन ले रहा है तो बुप्रेनॉर्फिन को कई बार लेना पड़ेगा, और सबलिंगुअली अगर ले रहे हैं तो 24 आवर्स का फुल कवरेज मिलता है। तो इसलिए ही हम बुप्रेनॉर्फिन को सबलिंगुअली देते हैं। बुप्रेनॉर्फिन अदरवाइज काफी सेफ मेडिसिन है, इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन भी एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, एक्सेप्ट कि कभी कोई हाइपर बुप्रेनॉर्फिन रिलेटेड हाइपर सेंसिटिविटी हो, जो कि इटसेल्फ बहुत ही रेयर है। हमारे मतलब अभी तक मैंने जितने भी पेशेंट्स को बुप्रेनॉर्फिन शुरू किया है, मैंने आज तक किसी में भी ये हाइपर सेंसिटिविटी फेनोमेना नहीं देखी है। तो ये काफी रेयर फेनोमेना है। हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट साथ में कोई हिप्नोटिक, सेडेटिव या अल्कोहल जैसी चीज ले रहे हैं जो कि ब्रेन डिप्रेसेंट हैं, तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का रिस्क हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि अल्कोहल ले रहे हैं, सेडेटिव या हिप्नोटिक ले रहे हैं, उनमें हमें बुप्रेनॉर्फिन को लो डोज से शुरू करने की जरूरत होती है, एंड देन वी ग्रेजुअली बिल्ड अ डोज ऑफ बुप्रेनॉर्फिन। सिमिलरली अगर किसी को रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट है, एस्थमा है, एम्फाइसीमा है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, तो भी रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगेन अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है तो आपको लो डोज से बुप्रेनॉर्फिन शुरू करके तब ग्रेजुअली बढ़ाना है। अगर लिवर में इम्पेयरमेंट है तो भी हमें इस चीज को ही फॉलो करना है। रही बात बुप्रेनॉर्फिन के इंटरेक्शंस की, तो बुप्रेनॉर्फिन बाय एंड लार्ज बहुत सेफ है और इसका दूसरे ड्रग्स के साथ कोई खास इंटरेक्शन नहीं होते हैं, एक्सेप्ट जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर कोई ब्रेन डिप्रेसेंट दे रहे हैं जैसे बेंजोडाइजीपीन, अल्कोहल, तो हमें इसको थोड़ा सा लो डोज से स्टार्ट करना है और फिर ग्रेजुअली हम उसको बिल्ड कर सकते हैं। और अगर किसी ने फुल एगोनिस्ट लिया है, जैसे हेरोइन लिया है, स्मैक लिया है, और आपके पास इमीडिएटली आया है, तो हमें विड्रॉल्स के आने तक का वेट करना है। अगर हमने इमीडिएटली बुप्रेनॉर्फिन भी दे दिया तो प्रेसिपिटेटेड विड्रॉल वाली सिचुएशन आएगी, एकदम से बहुत ज्यादा विड्रॉल पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर किसी ने बुप्रेनॉर्फिन लिया है स्मैक लेने के बाद, तो ओवरडोज नहीं होता है, विड्रॉल होते हैं। बहुत सारे लोग डरते हैं कि अगर सुबह पेशेंट स्मैक लेके आया है, मैंने बुप्रेनॉर्फिन दे दिया तो कहीं ओवरडोज ना हो जाए। तो हमारे पास ओवरडोज का कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ विड्रॉल से हम डरते हैं कि पेशेंट को थोड़ा विड्रॉल होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन बाय एंड लार्ज लाइफ को कोई उसके हार्म नहीं होने वाला है। रही बात इंटरेक्शंस की, तो कई सारी मेडिसिन ऐसी हैं जो कि लीवर एंजाइम्स को इंड्यूस करती हैं। तो कुछ मैंने मेडिसिन को यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है। हमारे पेशेंट्स में कई बार आपको एंटी एपिलेप्टिक्स चलते हुए मिलेंगे, या एटीटी चलता हुआ मिलेगा, या एंटी रेट्रोवायरल्स भी वो ले रहे होते हैं। सो अगर ये सब जो मेडिसिन यहाँ पे टेबल में हैं, ये एंजाइम्स, लीवर एंजाइम्स को इंड्यूस करते हैं, तो लीवर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि बुप्रेनॉर्फिन को भी लीवर एंजाइम्स ही मेटाबोलाइज करते हैं। तो अगर उनका इफेक्ट बढ़ जाएगा लीवर के एंजाइम्स का, तो बुप्रेनॉर्फिन ज़्यादा ब्रेक डाउन होगा और हमें पेशेंट्स में डोज थोड़ी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बुप्रेनॉर्फिन डोज में हैव टू बी इंक्रीज अगर साथ में ये मेडिसिन चल रही हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ हम ये समझ पाए कि अगर ये मेडिसिन चल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बुप्रेनॉर्फिन स्टार्ट ही नहीं करेंगे। बुप्रेनॉर्फिन तो हम तब भी स्टार्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक इसका उल्टा, अगर एंजाइम इनहिबिटर्स हैं
तो हम बुप्रेनॉर्फिन देंगे और हो सकता है कि चूंकि ये एंजाइम इनहिबिटर्स हैं, बुप्रेनॉर्फिन का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा रहेगा तो हमें डोज को थोड़ी सी कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम OST इनिशिएशन के क्राइटेरिया के बारे में ब्रीफली बात कर लेते हैं। तो OST हम किसी भी पेशेंट जिसमें कि ओपियोइड डिपेंडेंस का डायग्नोसिस है और अगर उसने पिछले 3 महीने में कभी भी कोई ड्रग इंजेक्ट किया है तो वो करंट आईडी हो जाएगा, और अगर वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट दे रहे हैं, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं है, तो हम उनमें ये मेडिसिन अपनी शुरू कर सकते हैं। यूजुअली एज 18 अगर है या उससे ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इससे कम एज वाले लोगों को नहीं दे सकते हैं। OST इंडक्शन के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस अभी नहीं करूँगा। अगर आप लोग चूँकि OST दे रहे हैं तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अभी आगे हम जब डिस्कस करेंगे तो। ना एक सवाल आता है कि मेंटेनेंस किस तरीके से करना है। तो हम लोग कई बार बुप्रेनॉर्फिन जो शुरू करते हैं तो उससे विड्रॉल्स और क्रेविंग तो हम मैनेज कर लेते हैं। जैसे विड्रॉल आपका हो गया 4 मिलीग्राम पे मैनेज हो गया, हमने 2 to 4 मिलीग्राम एक्स्ट्रा दिया तो क्रेविंग भी मैनेज हो गई। लेकिन हमें ओपियोइड ब्लॉकिंग इफेक्ट अचीव करने की कोशिश करनी है कि बुप्रेनॉर्फिन के ऊपर अगर किसी ने स्नैक लिया भी तो उसको उसका असर ही ना मिले, स्नैक का असर ही ना आए या हेरोइन का असर ही ना आए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो बुप्रेनॉर्फिन दे रहे हैं वो थोड़ा सा ऊपर की डोज में ही रखें। यूजुअली 8 to 16 मिलीग्राम बुप्रेनॉर्फिन पर डे जो होता है सफिशिएंट होता है हमारे पेशेंट्स के लिए, मोस्ट ऑफ हमारे पेशेंट्स के लिए। लेकिन कई बार हमें थोड़ा हाई डोज में भी जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लोगों के कई बार क्वेश्चन होते हैं कि कितना मैक्सिमम डोज दे सकते हैं, तो अप टू 32 मिलीग्राम जो है वो हम दे सकते हैं, क्योंकि गाइडलाइंस हमें रेकमेंड करते हैं। हमने एक चीज़ पहले भी पढ़ा था कि बुप्रेनॉर्फिन का प्लेट्यू आ जाता है हाई डोज में, तो जब हम 16 मिलीग्राम या उसके ऊपर डोज बढ़ाते हैं बुप्रेनॉर्फिन की तो उसके इफेक्ट में बहुत सब्सटैंशियल इंक्रीज नहीं होता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो लेकिन हाँ, पेशेंट बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, कईयों में हाई डोज की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हमें देने में झिझकना नहीं चाहिए। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि हम कब तक ये दवाई देते रहें और इसी डोज में देते रहें। तो मेंटेनेंस डोज जिस पे भी पेशेंट ठीक है, अच्छा महसूस कर रहा है, उसी को हमें कंटिन्यू करना होता है। लेट्स से 16 milligram is sufficient for a patient, so we will be required to continue the same dose for the patient as long as possible. We should not be in a hurry to reduce the dose of buprenorphine. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम कब तक देते रहें। तो बुप्रेनॉर्फिन मेंटेनेंस ट्रीटमेंट या OST के लिए कोई भी फिक्स टाइम नहीं है। अच्छा ये है कि हम जितना लंबा दे पाए, अगर हम ईयर्स के लिए भी देते हैं या डिकेड्स के लिए देते हैं, मतलब 10-20 साल भी दे रहे हैं, तो भी बुप्रेनॉर्फिन अगर पेशेंट ले रहा है तो उसको उससे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कंपेयर टू कि अगर वो बीच बीच में हेरोइन अगर ले रहे हैं तो। एक बार एक चीज़ जो होती है, कई बार हमारे पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि सर हमने तो स्नैक लेना छोड़ दिया है, अब हमारी बुप्रेनॉर्फिन को बंद कर दीजिए। तो यहाँ पे हमें ये बताने की ज़रूरत होती है कि आपने सिर्फ ड्रग छोड़ा है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपका ड्रग छूट जाए। हमारी ट्रीटमेंट का मकसद यही है कि आप फुली फंक्शनल हो जाएं अपनी फैमिली, सोसाइटी और वर्क के साथ, बिल्कुल जस्टिस कर पाए, सक्सेसफुल री-इंटीग्रेशन हो पाए आपका। अगर हम डिपेंडेंस और अब्यूज पोटेंशियल की बात करें बुप्रेनॉर्फिन की, so buprenorphine itself can be abused, especially if the person has never taken any other opioid.
So in a drug-naive patient, if they take buprenorphine, they will develop dependence to buprenorphine. It will produce euphoria, and it will also lead to development of withdrawal syndrome if not taken. However, the abuse liability of buprenorphine is less compared to heroin. So this makes buprenorphine an ideal OST medicine. It's एक्शन है illicit opioids की तरह ही है, तो buprenorphine लेने के बाद withdrawals और cravings नहीं होते हैं, इसका एडिक्शन पोटेंशियल भी कम है, ले सकते हैं सबलिंगुअली, और इसका इफेक्ट जो है 24 आवर्स या उससे ज्यादा समय के लिए रहता है। इसके साइड इफेक्ट्स काफी कम है और एक काफी वेल टॉलरेटेड मेडिसिन है। तो ये हमारा एक ब्रीफ रिकैप था। अब जो प्रैक्टिस में अपने प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या कोई क्वेश्चंस आप लोगों के मन में हो या कोई क्वेरीज या कोई कमेंट करना चाहें, तो हम वो अब उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। हेलो। हाँ संजय जी। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि पहले तो हमको जो ट्रेनिंग हुई थी वहां पर एम्स में, तो उन्होंने 18 mg लास्ट डोज बताई थी कि 18 mg लास्ट है, उसके बाद ब्लॉकिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब आपने कहा कि 36 आवर के आसपास वो चला जाता है, 36 mg तक दे सकते हैं। सॉरी संजय जी, बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था। जहां तक मैं समझ पाया, आप ये कह रहे हैं कि 18 mg पे की लास्ट डोज है कि इससे ऊपर ब्लॉकिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, इससे ऊपर नहीं देते हैं 18 mg। संजय जी, जो हम जहां तक जैसे प्रोग्राम की बात करें, तो यूजुअली ओपियोइड ब्लॉकिंग इफेक्ट जिस भी डोज पे क्रेविंग मैनेज हो जाती है, जैसे वो क्रेविंग किसी की मैनेज हो गई 10 mg पे, अगर हम उससे 2 to 4 मिलीग्राम एक्स्ट्रा देते हैं तो हमें ओपियोइड ब्लॉकिंग इफेक्ट मिल जाता है। तो ये सबके लिए फिक्स कभी नहीं हो सकता है कि 18 mg है मतलब ओपियोइड ब्लॉकिंग इफेक्ट आ जाएगा। कई बार क्योंकि हर आदमी की बॉडी अलग है, तो पेशेंट्स की भी जो जैसे किसी का हिपैटिक फंक्शन डिफरेंट है, किसी का ज़्यादा है, तो बॉडी को कम मेटाबोलाइज कर रहा है, तो हमें उस हर इंडिविजुअल पेशेंट के हिसाब से आइडेंटिफाई करना होता है। अब पता कैसे चले कि भाई ओपियोइड ब्लॉकिंग इफेक्ट कितने डोज पे आ जा रहा है? तो इसके लिए एक तो ये तरीका है कि जिस डोज पे क्रेविंग आपकी मैनेज हो गई, लेट्स से 10 मिलीग्राम, तो आप उसमें 2-4 मिलीग्राम एक्स्ट्रा दे देंगे तो पेशेंट को ओपियोइड ब्लॉकिंग इफेक्ट मिल जाएगा। लेकिन इनडायरेक्टली हमें ऐसे भी पता चलता है कि पेशेंट ने अगर मान लीजिए कि हमने 14 मिलीग्राम दिया, 14 मिलीग्राम बुप्रेनॉर्फिन लेने के बाद भी वो स्नैक ले रहे हैं या हेरोइन ले रहे हैं और उनको हाई मिल रहा है, तो मतलब है कि कुछ रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में खाली हैं, खाली रहे, जो बुप्रेनॉर्फिन से ब्लॉक नहीं हुआ। तो इसलिए हमें बढ़ा करके हम दे सकते हैं। और अगर पूरी तरीके से रिसेप्टर्स ब्लॉक हो गए बुप्रेनॉर्फिन से, तो अगर पेशेंट ने हेरोइन लिया भी तो उनको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा हेरोइन लेकर के, क्योंकि सारे रिसेप्टर बुप्रेनॉर्फिन से ही ब्लॉक हैं। बुप्रेनॉर्फिन टाइटली बाइंड होता है, वो हटेगा नहीं रिसेप्टर से, ओपियोइड रिसेप्टर से। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी संजय। किसी और के जिसके भी जो भी क्वेश्चंस हो, प्लीज हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं ताकि इन चीज़ों को डिस्कस कर पाए। किसी के मन में कुछ भी क्वेरीज हो तो प्लीज उसको है ना इस फोरम पे डिस्कस कर सकते हैं। सर जी सुचेता जी। सर पेशेंट जैसे 0.4 mg पे चल रहे हैं काफी टाइम से,
और जी उन्हें खत्म करनी है कि अब हमें ये टैबलेट्स नहीं लेनी है, तो फिर हमने जी क्या करना है? हाँ, सुचेता जी, एक इम्पोर्टेंट आपने मतलब पॉइंट रेज किया है। यहाँ पे मैं एक दो चीजें और बतलाऊंगा। जैसे अगर पेशेंट को 0.4 mg पे हम लेकर के आए हैं, तो हमने एक चीज ये होती है कि हम दे रहे हैं। आमतौर पे होता क्या है कि हमने देखा अभी के प्रेजेंटेशन में कि बुप्रेनोर्फिन जितना आप सफिशिएंट डोज में दो उतना अच्छा है। लेकिन कई बार होता क्या है कि पेशेंट को पता नहीं होता है कि भाई उसके लिए क्या अच्छा है, उसके डोज बताते हैं कि डोज ज्यादा अच्छे हो, हाई डोज पे रहोगे तो खराब हो। पेशेंट के घर वाले भी उनको यही बताते हैं कि अगर आप हाई डोज ले रहे हो तो आप अच्छे नहीं हैं, लो डोज बुप्रेनोर्फिन ले रहे हो तो अच्छे हो। तो ये पेशेंट का एक मिसकंसेप्शन होता है। तो वो लोग लो डोजेस के लिए हमेशा डिमांड करते हैं डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब दवाई कम कर दो, दवाई कम कर दो। लेकिन एज अ डॉक्टर ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको ये बतलाएं कि पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म में क्या अच्छा रहेगा। अगर हम उन्हें 0.8 मिलीग्राम या 1.2 मिलीग्राम या इस तरीके से लो डोज में दे रहे हैं, तो 24 आवर्स उनका कवरेज नहीं हो पाता है। 24 आवर्स बुप्रेनोर्फिन उनकी विड्रॉल को नहीं मैनेज करता है। फिर वो शाम को उनको दिक्कत होती है, नींद नहीं आती है या घबराहट होती है, तो फिर वो साथ में कैनबिस ले लेते हैं या फिर नींद की गोलियां ले लेते हैं या कभी अल्कोहल ले लेते हैं। तो ये हमारे पर्पस को डिफीट करता है। तो हमारे लिए ज़रूरी ये है कि जब हम बुप्रेनोर्फिन दे रहे हैं तो बुप्रेनोर्फिन की डोज कम ना करने के लिए पेशेंट को रेगुलरली एजुकेट करते रहें कि भाई आपके शरीर की ज़रूरत अगर 4 मिलीग्राम की है या 6 मिलीग्राम की है तो आपको उतना ही लेना है, उसको कम करने के लिए नहीं जाना है। एक तरीका है जिस तरीके से हम समझाते हैं पेशेंट्स को कि अगर किसी की भूख है 10 रोटी की है और उसको 4 रोटी हम देंगे तो क्या होगा? वो 4 रोटी से काम तो चला लेगा लेकिन वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होगा, फंक्शनल नहीं रहेगा। तो बेटर है कि हम पेशेंट को उसकी बॉडी की नीड्स के हिसाब से अच्छी डोज दें। लेकिन मैं समझ सकता हूँ ये चीज समझाने के बाद भी कई बार पेशेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई कम कर दीजिए। नहीं सर, तो पेशेंट हम जो अगर 0.4 mg पे काफी टाइम से पेशेंट्स हैं, मंथ से हैं, तो उनको ट्रीटमेंट कंप्लीट का है कि हमारा ट्रीटमेंट कब कंप्लीट होगा और क्या करना है इसके बाद। तो ये सारे बिल्कुल क्वेश्चंस सुचेता जी, पेशेंट्स के हैं। वही मैं बतला रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये बहुत ही मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। लेकिन आपको बताना है कि आपका इस ट्रीटमेंट का पर्पस क्या था। जैसा हमने डिस्कस किया ना स्लाइड्स में, जी मरीज यही सोचता है कि मैंने ड्रग नहीं लिया है, दवाई ले रहा हूँ, तो मेरा ट्रीटमेंट अब कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन क्या पेशेंट ने का ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन हो गया है? क्या पेशेंट जो हैं उनका सोशल रिहैबिलिटेशन हो गया है? वो अपनी कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी पर फंक्शन कर रहे हैं? अगर वो नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें इस चीज के लिए बताना है कि पहले आप फंक्शनल रहो, अभी हम इस बारे में सोच सकते हैं कि बुप्रेनोर्फिन की डोज रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो अगर पेशेंट की डोज ऑलरेडी इतनी कम है, सो हम उस जैसा आप बता रहे हैं कि 0.4 mg है, तो वी कैन थिंक ऑफ स्टॉपिंग द डोज ऑफ बुप्रेनोर्फिन कंप्लीटली। लेकिन हम पेशेंट को बता सकते हैं कि देखो भाई, अगर इसको बंद करने के बाद आपको थोड़ी भी दिक्कत होती है तो फिर हम वापस बुप्रेनोर्फिन स्टार्ट कर देंगे। और बुप्रेनोर्फिन अगर आप लाइफ लॉन्ग भी लेते रहो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वापस अगर रिलैप्स करते हो तो उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, क्योंकि जो कुछ भी आपने जितने समय एब्सेंट थे, चीजें अचीव की हैं, वो सब आपके लॉस्ट हो जाएंगे। जी तो इस तरीके से हमें एजुकेट करने की जरूरत है। और खास तौर पे जरूरी है कि हम पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करें ट्रीटमेंट में और उनको एजुकेट करें, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर उनकी तरफ से होता है कि आप बुप्रेनोर्फिन को कब तक देते रहोगे, अब तो ये ठीक है, छोड़ रखे हैं, इसको बंद कर दीजिए। सो दे नीड टू बी एजुकेटेड कि भाई दवाई इनके लिए वैसे ही जरूरी है जैसे कि शुगर के मरीज या प्रेशर के मरीज के लिए
दवाई अगर लेते रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, दवाई नहीं लेंगे तो हमेशा एक रिस्क है कि डायबिटीज वापस आएगा, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम फिर से वापस आएगी। और सर कोई अदर मेडिकेशन है ट्रीटमेंट स्टॉप होने के बाद कि पेशेंट को बताएं कि तुम वो लो ब्लड प्योरीफायर जैसे कुछ? हाँ, कोई भी ब्लड प्योरीफायर, एक और मिसकंसेप्शन है कि कोई ब्लड प्योरीफायर होता है। एक्चुअली ये चीज हमें बतानी है कि कोई ब्लड प्योरीफायर नहीं होता है। बुप्रेनोर्फिन या जो भी ओपियोइड मेडिकेशन है वो तो अपनी बॉडी खुद ही मेटाबोलाइज करके बाहर कर देती है। तो ऐसी कोई तो उनके शरीर में कीड़े जो हैं नशे के वो मर गए। क्योंकि बहुत बार पेशेंट यही समझते हैं कि जो दिक्कत हो रही है उसका कोई इन्फेक्शन हो गया है, कीड़े हो गए हैं। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। तो ये भी मिसकंसेप्शन को हमें हैंडल करने की जरूरत होती है, पेशेंट को एजुकेट करने की जरूरत होती है। और सर जो तो मरीज अगर, हाँ जी जी, बुप्रेनोर्फिन के साथ नैल्ट्रेक्सोन आती है, वो भी सेफ है? बिल्कुल बिल्कुल। जो बुप्रेनोर्फिन है सेम एक्शन है बुप्रेनोर्फिन नैलोक्सोन कॉम्बिनेशन का। जी। अब वो बुप्रेनोर्फिन नैलोक्सोन क्यों आता है, क्यों नैलोक्सोन बुप्रेनोर्फिन में जोड़ा गया? तो जो बुप्रेनोर्फिन है वो क्या होता है ना कि लोग कई बार उसको इंजेक्ट भी करते हैं। जी। तो उसमें हमने नैलोक्सोन इसलिए जोड़ा हुआ है कि अगर वो बुप्रेनोर्फिन नैलोक्सोन कॉम्बिनेशन को अगर इंजेक्ट करेंगे तो नैलोक्सोन क्या है, एंटागोनिस्ट है। तो वो बुप्रेनोर्फिन के इफेक्ट को कम कर देगा और मरीज को विड्रॉल होगा, तो उसको दिक्कत होगी तो वो इंजेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन नहीं है। पेशेंट्स हमारे बुप्रेनोर्फिन नैलोक्सोन कॉम्बिनेशन को भी इंजेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए सिर्फ हम ये सोचे कि बुप्रेनोर्फिन नैलोक्सोन है तो डाइवर्जन नहीं होगा, ये सही नहीं है। लेकिन अदरवाइज बुप्रेनोर्फिन जैसे सबलिंगुअली अगर लेते हैं या बुप्रेनोर्फिन नैलोक्सोन सबलिंगुअली लेते हैं तो इफेक्ट बिल्कुल सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। ओके सर, थैंक यू सर। हमें कॉन्टिन्यूसली पेशेंट से बात करके उनके जो व्यू पॉइंट्स हैं, उनके जो मिसकंसेप्शंस हैं वो जानने की जरूरत होती है। तो हर लोकेलिटी में, मैं जैसे अभी यूपी की बात करूँ तो वहाँ पे जो पेशेंट का सर्कल है वहाँ पे एक तरीके के मिसकंसेप्शंस है, दिल्ली में एक अलग तरीके के मिसकंसेप्शंस होंगे, जहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे एक अलग तरीके के पेशेंट्स के मिसकंसेप्शंस होंगे। तो वहाँ पे हम बात करके ही वहाँ के लोकल जो पॉपुलेशन है, लोकल जो ड्रग यूजिंग पॉपुलेशन है, उनके मिसकंसेप्शन को समझ सकते हैं और उनको हम दूर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये होता है कि जैसे कई बार मुझसे ओएसटी के डॉक्टर लोग ये भी कहते हैं कि सर हम ज़्यादा डोज दे देते हैं तो पेशेंट उसको इंजेक्ट कर लेता है। लेकिन आपको वहाँ यहाँ पर ये भी तो सोचना होगा कि अगर आपने कम डोज दी है तो पेशेंट की शरीर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं और पेशेंट को इंजेक्ट करना पड़ रहा है। अगर आपने इतना मेडिसिन दिया है कि उसकी शरीर की ज़रूरतें ही पूरी हो जा रही हैं तो उसको इंजेक्ट क्यों करना पड़ेगा? तो अगर पेशेंट इंजेक्ट कर रहा है बुप्रेनोर्फिन, इट मीन्स कि जो बुप्रेनोर्फिन हम दे रहे हैं वो पूरी बुप्रेनोर्फिन नहीं पड़ रही है पेशेंट की। मैं दो लोगों के देख सकता हूँ, शबीर जी, डॉक्टर शबीर, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? Hello. हाँ, yes, Dr. Shbir. Yes, sir. I have a question. Why NACO is providing buprenorphine plain, not with naloxone? What is the advantage of pure buprenorphine over buprenorphine with naloxone? This is one question, sir. The second question I have, sir. The second question is,
the center, OST center Srinagar, some of the patients, they move for work to some other districts where OST is not available. They ask us to give some substitution treatment. We are giving them gabapentin and some painkillers, non-opioid painkillers. Is the practice correct or not? Okay, so let me address your first question. So, as I have told just now, that using buprenorphine or buprenorphine naloxone does not make much difference. Initially, it was thought that adding naloxone to buprenorphine will be a foolproof solution to deal with diversion of buprenorphine. Diversion means patient will not inject buprenorphine naloxone combination. However, in my experience, and this is the experience of many other people who have prescribed buprenorphine naloxone, that people do continue to inject buprenorphine naloxone also. So, but definitely they will not be getting as good high with buprenorphine naloxone as they get with plain buprenorphine. Even then, NACO is in the process of procuring this buprenorphine naloxone combination. Buprenorphine which was available earlier, then came this buprenorphine naloxone combination. So NACO is already in this process, and I believe in few years, because this tender process and procurement, it takes some time. But definitely this buprenorphine naloxone combination will be available in coming months or years. So it will be there. But again, what I want to emphasize is that your practice is not going to change substantially, even when you will have this buprenorphine naloxone combination. So this is the answer to your first question. Thanks, sir. Then with regard to your second question about what can be done for the patients who are not able to come for buprenorphine based OST on a regular basis, then Yes, sir. we are forced to sort of manage their acute withdrawals. For management of acute withdrawals, it is clonidine, which is more effective. Like if you try to manage it with gabapentin or some other GABAergic medication, they will not be giving the patient much relief. So what you can do, you can give clonidine. It comes by the name Arcamin. It is commonly available. So clonidine 0.1 mg, half BD, half TDS, or 1 BD, 1 TDS. So clonidine usually is a good medication to manage this opioid withdrawal. However, the problem with clonidine is that clonidine may lead to Hypertension. Hypotension. So you just have to be vigilant about hypotension. Just ask the patient to have enough amount of fluids, and then you can gradually increase the dose of clonidine. And since we expect the withdrawals to be there for about 2 weeks and at max 3 weeks, but it is never more than a week or 2. So after this much duration, we can think of tapering the dose of clonidine and stopping it. For sleep, you can prescribe trazodone or mirtazapine, which can be done very safely. And if there is even intense anxiety, you can prescribe some benzodiazepines, but that's it. And if still the patient is unable to detoxification is not successful, then you can always suggest that the patient can move to the place where there is availability of OST, because anyway, if they are taking opioids, they are not functional. They are like spending everything which they are earning on the opioid use itself. So that can also be one strategy. But Thanks, sir. When we compare this detoxification with buprenorphine maintenance treatment, there is lot more evidence for buprenorphine maintenance treatment. Detoxification is never our first choice thing, because there are we know that addiction is associated with the relapses, and every time a patient relapses, they lose everything what they have earned during the period for which they were abstinent.
Thanks, sir. Thanks a lot, sir. Okay. Anjana ji. Dr. Anjana, I can see your hand raised. Do you have any questions? Dr. Ajay, meanwhile, Listen, I have one question. Actually, my out of 128 patients, 81 patients are doing job now. And it is not possible for them to come daily for the to take the medicine. Now, let me know that what can we do? Dr. Ajay, again, like when we induct a patient in our program, OST program, then we tell them at the very beginning that you will be required to come for these medications on a regular basis. And when they come to you on a regular basis, this is again one strategy to sort of be sure that they are sort of taking medications on in a proper manner. They are adherent to medication, how they are progressing. Many a times you will find that those people who tell that they are like doing job, they are very well, and you start giving them buprenorphine take home, they often start sort of misusing it. Let's say on one day they may take higher doses of medication, the other day the dose will be lesser and they will just consume some other substance along with buprenorphine also. So this is sort of like a double-edged sword. If you give them take home, it is again a strategy that people are using, but there are risks associated with it. However, for very stable patients, even we have proposed to prescribe them take home medication, but till now, like it is not there in our program, the OST program, so we won't be able to give them this take home medications. So this is our limitation. We for now, since we are working under this program, we won't be able to prescribe them take home medication, except occasionally when there is some emergency or some circumstances, like if they are about to go some surgery, or if they are moving to some other place for some work, but not often. So then for a few days you can prescribe take home medication. It is always better to involve their family members so that they can supervise the medications when the patient is taking this buprenorphine back at home on their own. Actually, Dr. Amit, what we have tried here, once the patients have approached us that they are doing their job, okay, then we have asked their spouse or mother or father to come and take medicine, and they are giving in their supervision, and a few of them are doing very well. Shall we continue this, or otherwise they will lose their job? It is not possible for them to come daily. And this is a major issue, and I think it should be considered at some level. Dr. Ajay, this is more of a policy thing. Like when I was there in NACO, we floated this idea that the patient should be like there should be an option of giving them take-home medication. But other problem often the doctors face is that when you prescribe take-home medication to one patient, every other patient start asking for take-home medication only. Even they fake their parents, they fake that this is my spouse, and we have seen lots of situations. So, and anyway, since we are working under a program, we have to follow their rules till there is a change in that. Like during the COVID, there was a relaxation. The medication could have been provided to any family member. So this is the limitation of the program, you can say. Okay, thank you.
Any other questions? Again, there is one important issue that of patients dropping out of our OST program. We have seen that this is a common problem faced by many OST centers. So one important area one important thing that we can do is always providing them with the adequate dose of medication. If we are giving them a good enough dose of buprenorphine, they will not even try other drugs or other medications or other substances. So that will make them remain adherent to our OST. One of the most important causes of patients dropout is that related to inadequate dose of buprenorphine. Because of this inadequate dose of buprenorphine, they use opioids or cannabis, and then they become irregular to the treatment and gradually they drop out. So I again want to re-emphasize this thing that we should be giving the patients good enough dose of buprenorphine. एक सवाल आता है कि आखिर हम कितना ज्यादा दें, तो मैं उसके बारे में एक ब्रीफली बता दूं कि जैसे हमने 6 मिलीग्राम पे मान लीजिए विड्रॉल मैनेज हो गया, 8 मिलीग्राम पे क्रेविंग मैनेज हो गया और 10 मिलीग्राम पे ओपियोइड ब्लॉकिंग इफेक्ट आ गया, या हमें लग रहा है कि ओपियोइड ब्लॉकिंग इफेक्ट नहीं भी मिला, तो भी हम डोज कब तक बढ़ाएं, इसका एक और हमें आइडिया मिलता है कि जिस डोज पे पेशेंट को साइड इफेक्ट्स नहीं आने शुरू हुए। तो पेशेंट को यूजुअली क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं अगर हम बुप्रेनॉर्फिन की डोज ज़्यादा रखते हैं, तो वो पता होना चाहिए। तो कॉमनली जो पेशेंट्स हैं वो जब अगर डोज ज़्यादा होगी तो बताएंगे कि उन्हें हेडेक हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, या फिर उनको दिन में ड्राउजीनेस, नींद सी लगा करती है। तो हमें जब अगर पेशेंट ये सब कंप्लेंट्स बता रहे हैं तो डोज थोड़ा कम करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं और फिर भी हमें लग रहा है कि पेशेंट में रिस्क है कि वो ओपियोइड यूज़ करेगा, मैं कह रहा है, तो हम हमारे लिए स्कोप है कि हम डोज थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो हमें डोज बढ़ा के पेशेंट को देना चाहिए। Thank you so much, Dr. Amit. To all the participants, are there any more questions or any field experiences that you'd like to share? So in case there are no more questions, can we close this session? But before that, I'll request everybody to switch on their video for a few seconds and we'll take a group photograph. तो अगर आपका बैंडविड्थ अलाउ करता है तो अपना वीडियो को ऑन करिए कुछ ही सेकंड्स के लिए और हम एक ग्रुप फोटोग्राफ लेंगे, फिर उसके बाद में हम ये सेशन क्लोज कर देंगे। Requesting everyone to switch on their video, turn on their videos for few seconds. Thank you, Dr. Piyush, ओपन करने के लिए। अभी बाकियों का वेट करते हैं हम। Because of power outage at my place, there is some darkness. The background is dark, even Yes, yes. surrounding is dark. No problem. We've taken your photos earlier. Okay, I'll just quickly take a photo. Maybe others don't have. Yeah, thank you, Dr. Sucheta. और भी कोई अगर है ओपन करना चाह रहे हो, थैंक यू डॉक्टर अभिषेक, थैंक यू डॉक्टर अंजना, थैंक यू डॉक्टर रेवा। और भी कोई है जो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं तो प्लीज करिए, हम क्विकली एक फोटो लेंगे। थैंक यू डॉक्टर अजय, डॉक्टर शब्बीर, डॉक्टर शर्मिला, डॉक्टर संजय, आप भी ओपन कर सकते हैं तो कर लीजिए।
Okay, great. Dr. Shabir, आप भी open कर सकते हैं क्या? Otherwise, we'll go ahead with our photograph. Okay, no problem. So I'm clicking now. You can all smile on 3. Yeah, thank you everyone for opening. Wait. 1, 2, and 3. Give me one more second. I'll take another. Okay, I'm clicking now. 1, 2, and 3. Participants for engaging with our speaker for today, Dr. Amit. Thank you so much, Dr. Amit Singh, for giving a wonderful presentation. So have a great evening ahead. Bye-bye. Sucheta, Anushree ji, Yes, here yes, I yes. would also like to remind people that there is a OST group where all the doctors are sort of there in this WhatsApp OST group. So if anybody has any questions related to their day-to-day practice, if they are facing any problems, they can always raise their questions there in the OST group for doctors, and it will get sorted out by me or some other people who are there in this group. So that will help you. I believe Moong has a better idea about that group, and Moong must have let other people join that group. Moong, are you there? Yeah, hello. Yeah, Yes, Dr. Moong. Yeah. Actually, we were engaged in some other activities, so I could not join the meeting properly. Yeah, like Okay, I okay, said, okay. yeah, we have 2 more batches. These 2 batches are No, done. no, then- no. Moong, I am asking about the WhatsApp group for OST Yeah. doctors. So once we finish these 2 more batches, we will add all these medical doctors, their participants in this OST NACO medical officer group. We'll do that. Yes, yes, yes. And we'll send them the copy of the guidelines also. Okay. Okay. Thank you, Moong. Your electricity Okay. is back. Yes, yeah. After this So yes, presentation is over. in case people are not already a part of that WhatsApp group, we do provide Moong with all the numbers of the participants, because when they register, they provide their numbers and email IDs. So if somebody is not added, he'll be adding them to that OST group. Okay. Okay. Thank you everyone for joining. Okay, have a great evening. Bye bye. Bye bye.